Hello everyone, especially learners and students of class plus 1 and plus 2, and this video is meant for the students of class plus 1 and plus 2 for the subject is general English. Okay, general English of class plus 1 and plus 2 from the board Punjab School Education Board. Okay, so in this video I have brought and discussed with you the chapter 1 Hassan's attendance problem, general English attendance problem, Hassan's attendance problem. Okay, this is a very particular, very nice, very practical and life lesson of class plus 1 plus 2. Okay, so by meaning saying that class plus 1 and plus 2 is that the student, those who want to acquire good score and a good percentage in class plus 2, they study the same subject and syllabus in their class plus 1 so that they get very good knowledge and acquire all the understanding topics in class plus 1 and then continue in class plus 2, so they will able to get a good score. Okay, so in this video we'll discuss Hassan's attendance problem, and make sure going further I will be bilingual, okay, using mother tongue and English as well, so that those who want to understand in English and can be helpful, and those who want to understand bilingually, welcome. Okay, जो ये लेसन है ना हसन से अटेंडेंस प्रॉब्लम, मैंने भी अभी बोला है कि ये प्रैक्टिकल लेसन है. प्रैक्टिकल मींस जो इनके राइटर है ना सुधा मूर्ति, तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक शी इज़ ए गुड राइटर, शी इज़ आर्टिस्ट. ओके, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं. सुधा मूर्ति, शी इज़ अ सोशल वर्कर, वेरी काइंड हार्टेड वुमन and a philanthropist. A philanthropist means a person who loves to work social and loves a human being. फिलेंथ्रोपिस्ट मानव जाति को प्रेम करने वाला. तो ये सोशल वर्कर है, बहुत नाइस, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन लेडी है और बहुत किताबें लिखी है. तो उन किताबों में से ये बयान करती है, नरेट करती है, शी हरसेल्फ इज नरेटिंग द स्टोरी दैट in her first batch there was a number of students, but she could remember one of them, and the thing made her to think of a student is that thought etched in her mind. The student, see, कितने टीचर के पास बच्चे आते हैं साल भर में पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई ऐसी छाप छोड़ जाता है जो टीचर को याद रह जाता है. लेकिन वह स्टूडेंट कोई ब्रिलियंट नहीं होता, इंटेलिजेंट, रादर द स्टूडेंट इज वेरी क्रिएटिव. ओके, student is very creative and he or she is recreational, like number of things that he or she can raise and be mischievous. Okay, तो ये बहुत अच्छी टीचर है, पर्सन भी है. तो मेन वो रिमेंबर करती है अब स्टूडेंट हसन. ये स्टूडेंट है that she came to know very rarely in her class, only appearing when they were exams or a class test, and he appeared. Who are you? Ma'am, I am one of the students. Hassan, are you part of this class? Yes, I am a part of the class. Oh, is that? Now she remembers and narrate. Okay, let's go. Hassan, a main character, and she reminds herself by saying that Hassan was very tall, handsome and witty. Witty means with good sharp memory. Okay, Hassan अच्छा है, लंबी हाइट का, स्मार्ट दिखने वाला और शार्प माइंड है. तो टीचर ऐसे नरेट करती है और साथ में बताती है किस प्रकार वह स्टूडेंट को याद रख लेती है और किस प्रकार स्टूडेंट की यादें टीचर के दिमाग में हो जाती है. आगे बढ़ते हैं. वो जानती है कि जब हसन क्लास टेस्ट और एग्जाम के बीच में आता है ना, तो तब
जो ये क्या बोलते इसको, हसन, सॉरी टीचर है, तो वो जान लेती है कि हसन इज वेरी इरेगुलर एंड इनडिसिप्लिन बॉय। तो सेमेस्टर के बीच में या सेमेस्टर के लास्ट में आता है, तो तब आके टीचर को बोलता है, टीचर आई एम अ स्टूडेंट एंड आई बेग एंड आस्क सॉरी वेरी अपोलोजेटिकली, एंड टीचर couldn't say no to him। ओके, टीचर कैसे बोले अभी नो? तो कई बार टीचर फेड अप हो जाती है एंड शी सेड नो, नॉट दिस टाइम। हसन क्या बोलता है, मैम टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। टीचर बोलती है, एंड अदर थिंग ही सेज, टीचर यू टॉट अस दिस all। Teacher couldn't remain angry for long and she allowed him to sit in the exam or final examination, since he thought that restraining student from attendance that will affect his career and study। Okay, then she would render her attendance, and she knew that he comes from affluent family, means there's no problem of financial in his house। घर में कोई पैसे की परेशानी नहीं है, अच्छे खासे अमीर परिवार से आता है। और टीचर इन बिटवीन क्या जानती है, ही इज वेरी लेजी। ओके, जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, हसन तभी अपीयर होगा जब क्लास में कुछ क्लास टेस्ट होंगे या एग्जाम्स होंगे, और जब ये इस समय में आता है ना, तो क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करता है, क्रैम फॉर एग्जांपल क्रैम करता है, और क्लास में आके टेस्ट लिख देता है, एग्जाम फाइनल लिख देता है, तो फर्स्ट आ जाता है। पहले साल में या पहले सेमेस्टर में तो टीचर सोचती है शायद ये नकल करता होगा, चीट करता होगा, तो हो सकता है। सिंस इनकी स्टडी मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन है बेंगलोर में, वहां पर हसन ये है स्टूडेंट और सुधा मूर्ति वहां पर टीचर है। तो 3 साल इन्होंने ऑल टुगेदर स्पेंड करने हैं। तो फर्स्ट ईयर में शी ज्यूम्स कि हो सकता है चीट करके ये फर्स्ट आ जाता है। और क्या होता है, इन बिटवीन द सेमेस्टर्स और ईयर्स, ये जब फर्स्ट आता है ना, तो पढ़ने वाले बच्चों को क्या बोलता है, नर्ड्स। ही कॉल्ड द इंटेलिजेंट और द लर्नर्स नर्ड्स। नर्ड्स मीन्स लेजी, नॉट फैशनेबल, कोई एंटरटेनमेंट लाइफ में ना हो। तो हसन के माइंड में क्या चलता था कि ये सारा साल पढ़ते हैं और मैं सिर्फ क्लास टेस्ट में या एग्जाम में पढ़ता हूँ, फिर भी टॉप कर जाता हूँ, इसलिए हसन उन्हें नर्ड्स कहता था। ओके, अभी क्या होता था, मैंने जैसे बताया ना, हर सेमेस्टर में हसन अपनी टीचर से अपॉलॉजी मांगा करता था, मैम प्लीज फॉरगिव मी एंड प्लीज इफ यू विल नॉट अलाउ मी अटेंडेंस माय करियर विल बी इन डेंजर। एंड टीचर को काइंड हार्टेड है ना, तरस आ जाता है, तो बोल देती है ठीक है। आगे बोलता है, मैम आई प्रॉमिस फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड आई विल बी डिसिप्लिन्ड, आई विल बी रेगुलर, प्लीज दिस टाइम। टीचर बोल देती है। टीचर न्यू दैट हसन इज वेरी लेजी। नाउ इट्स बीन टाइम एंड अगेन दैट शी रेंडर्ड अटेंडेंस। नाउ शी इज फेड अप। शी डिसाइडेड टू कॉल अप हिज पेरेंट्स। हसन थोड़ा परेशानी में आ गया। हसन इज इन अफेक्ट्स व्हाट टू डू, बट एनी हाउ ही हैड टू ब्रिंग। टीचर के सामने पेरेंट्स आ गए, तो टीचर पेरेंट्स को बोलती है, यू शुड मैंड योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को सुधारें। माँ बोलती है, टीचर आप बताएं, अगर कोई व्यक्ति रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चैट करे फ्रेंड के साथ फोन पे, ओके, और सुबह 6 बजे जाकर सोए, तो किस समय में सुबह जल्दी उठकर समय से स्कूल जाए या पहुंच सके। Then who, if one takes time and spend through whole night through 12 to 6 chatting and talking on a phone, then how he or she be able to wake up on time and go to school on time? Okay. Meanwhile, जब पेरेंट टीचर होती है ना, तो टीचर पेरेंट्स को बोलती है टू फादर,
You should talk to your boy firmly. फादर आगे टीचर को बोलता है, टीचर यू टीच योर स्टूडेंट्स एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम सिंस थ्रू द डे द चाइल्ड विद यू, ओके, एंड यू द वन टू मेंड. मीनवाइल टीचर दोनों पेरेंट्स को बोलती है कि अपने बच्चों को सुधारें आप, ऐसा आगे नहीं चलेगा, लाइफ का सवाल है. तो आगे उनमें डिस्प्यूट चल जाता है फादर और मदर में. फादर मदर को बोलते हैं, सी दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चों का ध्यान रखें. मैं तो बाहर जाता हूं कमाने के लिए, उधर भी जिम्मेवारी है ना. आगे से मदर फादर को बोलती है, इट इज नॉट इनफ टू अर्न मनी, it is not enough to earn money, rather to take care and spend time with child is more important than earning money. दोनों का डिस्प्यूट सुनने के बाद टीचर बोलती है, calm down, stop, go home and settle down your dispute, okay. Meanwhile she understood that teacher went fruitlessly. There's no solution from teacher nor from the parents that could mend Hassan. Okay, time goes on and it is the last time when Hassan appeared for the final exams and he came to the teacher and said, thank you so much ma'am for supporting and helping me, and because of you I could pass out my degree. Okay, and he says that if God willing we'll see again. Okay, time passes, time goes, years pass. Okay, then she couldn't meet him anytime any long in life. Okay, एक दिन क्या होता है, टीचर के डोर बेल पे टंग टंग नोक डोर बेल बजती है. तो एक व्यक्ति जो मोटा प्लम्प फूला हुआ, ओके, टोल नहीं, क्या बोलते हैं, बॉल्ड, गंजा, तो सामने आता है. टिंग टिंग बेल बजती है और टीचर की असिस्टेंट आती है, बोलती है यस. वो बोलता है मैं सॉफ्टवेयर मैकेनिक हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सीडीज बेचता हूँ, और ये जो सीडी है टीचर के लिए, सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए अच्छी है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी हेल्प हो सकती है. ओके, तो मैं टीचर को मिलना चाहता हूँ. जो असिस्टेंट होती है वापस अंदर आके बोलती है, टीचर ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, कोई आपका स्टूडेंट है, ये सीडी बेचता है. तो वो बोलती है कि नहीं, आप उनको बोलो, स्पीक टू हिम, मीट समवन, आई एम बिजी एंड आई हैव अ पाइल ऑफ अनचेक्ड पेपर्स. ओके, देन असिस्टेंट फिर जाती है, बोलती है मैम इज सो बिजी सो शी कांट सी यू एंड शी इवन कांट मीट यू. वो बोलता है नहीं, the person insists, the person insists, the assistant. Okay, बोलता नहीं मैम, मुझे मैम से ही मिलना है. Assistant goes back and talk to ma'am. The person is very insisting and is very determined. Please, he wanted to see you. टीचर बोलते ठीक है, let him see me at 2 o'clock. वो वापस आके बोलती है, वो बोलता ठीक है मैं वेट करता हूँ. At 2 o'clock, when teacher meets this person, by seeing this person sees a teacher, by seeing he recognizes that she is my teacher who taught me in MCA at Bangalore. तो वो बोलता है टीचर ना पहले क्या बोलता है, बोलता सीडी के बारे में बोलता है. टीचर ये जो सीडी है ना आपको बहुत हेल्प कर सकती है टीचिंग क्लास में, फिर पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन में, फिर प्रोजेक्ट में अच्छी हेल्प कर सकती है. वो इंट्रोड्यूस करता है अपनी सीडी के बारे में. टीचर नोट्स, ठीक है. फिर बात होने के बाद वो व्यक्ति बोलता है टीचर को, टीचर डिड यू रिकॉग्नाइज मी? टीचर बोलती नहीं, आई एम वन ऑफ योर स्टूडेंट्स, सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू. फिर बोलता है मैम, एक सेंटेंस याद करते हुए, फ्रॉम इनसाइड द विंडो
you can see all the world outside, and from outside you cannot see anything, all is inside. अच्छा, ये कथन बोल के टीचर सोचती है ये तो कथन मैं स्टेटमेंट मैं क्लास में कहीं यूज किया करती थी, हो सकता है कोई ना कोई स्टूडेंट तो होगा। फिर ये व्यक्ति बोलता है मैम, आई हु वाज इर्रेगुलर एंड डिसिप्लिन। Hassan, yes, Hassan, I am surprised to see you at a small job. Ma'am, you know, I was lazy. After completing my degree, my old habit continued, and I joined one or the other job, but I was sacked. एक काम के बाद दूसरा काम मिलता था, लेकिन मुझे निकाल दिया जाता था। I was fired. Okay, sacked means निकालना। तो टीचर बोलती है I'm so sorry Hassan, see where your class fellows are now. Some would be in a foreign, some would have got married and got good business, good income, living luxurious life, then they are very rich, and you are doing a very small job of a software Siri salesperson. Ma'am, all this because of my laziness. Teacher said, Hassan, put off your old habits. This person, Hassan, replies, ma'am, old habits die hard. ये क्या बोलते हैं हिंदी में? पुरानी आदतें जल्दी खत्म नहीं होती। टीचर बोलती है I do agree, old habits die hard, but still you can change them gradually. Oh yes. And she finally says, Hassan, I want you to grow up in life and give up your old habit and laziness, and I want you to rise up in life. And he promises, Hassan, ma'am, definitely I will act upon your advice, and thank you so much for your time that you've given me, and next time you won't see me on this very small job or in this situation. And teacher finally says that, and if I see you next time, and I will see you in a new way. Okay, and these words end up, and this person Hassan departs, and no longer after this teacher sees this person. Okay, this was the story of Hassan's attendance problem that goes through is 3 years at MCA college, Masters of Computer Application at Bangalore. Okay, where Sudha Murthy was the teacher and Hassan was a student, and this was a life process at Bangalore college. How Hassan continued his old habits, किस प्रकार हसन की पुरानी आदतें और आगे चलकर उसको लाइफ में एक लेजी व्यक्ति बना देती है, और किस प्रकार कॉलेज में रहते वक्त उसको अटेंडेंस में प्रॉब्लम आती थी। परिवार में कोई कमी नहीं थी, लेजीनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस। और लेजीनेस जो होती है ना, व्यक्ति को इतना निकम्मा बना देती है, आइडल, दैट आगे चलकर उसको जीवन में मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो निकम्मा बन के रह जाता है, लेजी बन के रह जाता है, और काम वो लेता है जिसमें उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये लेसन है, आप अपनी क्लास +1 +2 में भी देख सकते हैं और आगे इसकी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो रिवाइंड कर देख सकते हैं। और यदि कोई आप में से न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मटेरियल्स रिगार्डिंग योर जनरल इंग्लिश, spoken English and class subject sociology will be sent, and you will get latest update if you press the bell icon. Okay, subscribe, share more with your friends, family, and subscribe, so that through your support I will spread all the needful material through online class, as situation is very worse and the pandemic is going on, so I will help you through each and every topic. Okay, so hope this video will help you to understand this lesson, and stay tuned with this channel and share more with your friends so that you will get the needful materials. Thank you.